Mr. Ravinder Singh Virdi. He is an executive. He is a certified NLP executive and a personal life coach, and he's a motivational speaker. He's the author of the 25th Hour and Ignite Me books, and he has a corporate experience as well as now currently he is more into this coach, and he also conducts sessions and coaching sessions and training sessions with different issues such as stress, anxiety, professional life, personal life. So we are here with him to discuss about the topic about the stress in the life of females. And yes, let's go ahead. Great. Thank you so much, Piyusha, for introducing me. Sincere apologies for getting the delay. Not sure what exactly wrong is in technical terms, Exactly. but then I was trying from my laptop, so I tried from my phone. So somehow I have to hold it. So I was not prepared to hold my phone in my hand. So still it is good. Okay, great. So first of all, thank you so much, Queens, Bihar, to allowing me and getting me into this kind of session. I've done a lot many sessions, especially, and I do mentoring and coaching as well, especially and kind of a life coach role. You can say that I'm NLP Yes, certified. So yes. NLP is like neuro linguistic programming, you can say. So Okay. in a layman language. So because not everybody understand what NLP is exactly. So it is all Ah, about I had to what Google it what too. exactly. So it is neuro-linguistic programming. I will say that it is more of reading it, from person mind and helping them out. It is another brother or sister of psychology and CBT as well. Yes, So yes, CBT is CBT. cognitive behavior therapy. So I have gone through all those subjects and everything. So today we are going to talk about stress and she. And Yes. before we go ahead, I want to wish everyone a happy Happy Daughter's Daughter's Day. Day. You have a Yes, daughter? yes, yeah. She is 6+, and I have in I have two daughters. I just delivered one around 1.5 month back, and one is 3 years. okay, that's great. That's great. So that is what we are going to do. Uh, we will talk about what is stress, how it is causing, a bad health, or I will say that a bad mindset, kind of, because I don't use those negative, positive words. Hmm. Because I believe that it is all in the mind somehow. We Yes, all go yes, through a different kind of things, different yes, aspects of life. So which is like more of thinking that what best we can do. So we can yes, start that. If we have any questions, I would request everyone to just write it down. I will be very happy to answer all of your questions. yes, yes, And exactly. That's exactly I why we have are here today. yes, yes. So okay. So and today. The session or time which we are going to spend for another 40-45 minutes, what we left with. So I'm going to cover a few things. So I will just explain it to you guys. A very interesting way I am trying to put it all to all of you. We will start it to understand that what exactly stress, Hmm. anxiety, and depression is. And I have few stories to give with examples as well. I am sure that people are going to love it because it is Hmm. going to give a learning as well to everybody, and a Yes. very good surprise for all the women on earth, for all the daughters especially. It is my poem which I have written for my daughter. Sure, It's we'll been be. a few years. Yes. And today I would like to get a chance to speak it up about that as well, but we will do it in the end once we Hmm. close it off. So we can start that, Dr. Piyusha. You can initiate any Yeah. what the subject exactly is, stress and she. Yes. And it is very alarming that the ratio which we have comparative to male and female. In women, it is 70%. If we Mhm. say that how many women or male or female are affected with this depression and anxiety, it is approximate 70%, which includes all those cases and everything. So
we need to understand that how it all starts and what exactly stress, anxiety, depression is. Okay, so when we start that, stress is healthy thing. It's not bad. Everything is healthy till the time it is as per the limit. कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है. अगर मैं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा if I'm thinking too much about something, then it is not good for me. And again we need to understand that. Now we come to the depression. Depression is all about your past. किसी को भी फ्यूचर को लेके डिप्रेशन नहीं होता है. Depression is caused by the past things, what experiences we had, what we have been through, what exactly what our experiences were. Maybe it is a relationship, it is about work, it can be from anything from the past. Anxiety happens due to future thinking. Yes. जब हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, जब हम जो चीज हुई नहीं है हम उसके बारे में सोचने लगते हैं. एंड देयर इज अ वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि उसको घुमाएं और वो आपकी स्ट्रेस दूर कर दे और आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को खत्म कर दे. अगेन आई सेड दैट इट इज ऑल इन योर माइंड. व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. लाइफ आती है, लाइफ टफ है, मैं मानता हूँ. लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं. व्हेन वी एज अ वुमन, as a female, when we go through our life circle, there are lot many changes which happens. Our complete family change ho jati hai shaadi ke baad. When we are born, there are different things. We go to study, competition is there in every aspect. But there are lot many things which we face as a woman. What I want to understand here is that when we go through all these situations, I think it is better to keep a positive mindset. There is a very good story which I have, so मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, and there is a learning after that. तो मैं बताऊँगा, उसके बाद I will be asking people some questions that what they learn out of this story. It is about Guru Nanak Dev Ji. So he's first guru of Sikh and Sikhism. He started all that. Then I want to talk about that. Guru Nanak Dev Ji काफी घूमते रहते थे, being son, he used to go to different places, and he was having one person with him as well, मर्दाना जी, जो उनके साथ में उनको असिस्ट करते थे. तो एक बार वो लोग जब जा रहे थे, जाते जाते एक बार once upon a time रात हो गई. They reach to a village boundary, और उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम करते हैं, इस गांव के अंदर रुक के रेस्ट करते हैं. We will go and take some rest. तो उन्होंने जैसे ही अंदर जाने के लिए बाउंड्रीज में एंट्री किया, तो गांव वालों ने उनको रोक दिया बाहर ही. बोले भैया अलाउड नहीं है यहाँ पे ना, संत वंत ये सब अलाउड नहीं है. लोग आप लोग कहाँ से आए हो, कौन हो, हम नहीं जानते, वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, आप बाहर ही रुकिए. एंड नोबडी हैज गिवन देम एनी फूड और एनीथिंग. उन लोगों ने पूरी रात बाहर ही बिताई. देन इट इज फाइन. सुबह हुआ, गुरु नानक देव जी उठे, और जब वो चलने वाले हुए, then he turned back to the village and he said that Vasdero. He has given a blessing. Vasdero means, आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए. And then he moved to the another village. फिर चलते चलते एक बार फिर अगला दिन बीता तो रात हुई. There was another village which came. अगले गांव में जब वो पहुंचे, तो जैसे ही वो गांव की बाउंड्री में पहुंचे, तो देन पीपल वर वेरी हैप्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज. लोगों ने उनको कहा कि आप आइए, बैठिए, पूरी उनकी सेवा वगैरह करी, सब कुछ अच्छे से खाना वाना दिया. दे वर वेरी हैप्पी और बड़े खुश हुए लोग कि हाँ हमारे यहाँ पे संत आए. तो जब सुबह हुई, बाबा जी जब गांव से बाहर निकलने वाले थे, देन अगेन ही टर्न, और उन्होंने गांव की तरफ फेस करके बोला कि उजड़ जाओ, गेट स्प्रेड, काइंड ऑफ वर्ड. बट वो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, उजड़ जाओ. तो लोग सेवा कर रहे हैं आप उनको. एंड देन मर्दाना जो उनके साथ में थे, उन्होंने बड़े हैरान होकर पूछा कि बाबा जी आपने कल उनको, जिन्होंने आपको बुरा भला बोला, गालियां दी, खाने को नहीं दिया आपको,
बाहर ही रोक दिया गांव के। आप उनको बोल रहे हो कि बसते रहो, और जब ये गांव वालों ने आपकी इतनी सेवा करी है, आपके लिए इतना कुछ किया है, आप इनको कह रहे हो कि उजड़ जाओ। हम्म। ये समझ नहीं आया व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू। आपने ऐसा किया क्यों, और आपका इसके पीछे मोटिव क्या था, बताइए मुझे। तो बाबा जी ने बड़े सिंपली से आंसर दिया कि मर्दाना, जो लोग गलत हैं, अगर वो उसी जगह रहे जहां पर हैं, और अगर वो बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरों को भी खराब करेंगे, तो बेटर है कि वो वहीं बसे रहे। तो मैंने उन्हें बोला कि बसे रहो। जब मैं दूसरे गांव में गया तो वहां मैंने देखा कि लोग बहुत अच्छे नेचर के हैं, दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, सेवा करते हैं, अच्छी विचारधारा वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले। तो मैंने उनको बोला कि उजड़ जाओ, दैट यू विल गो टू अदर प्लेसेस, जहां पे आप जाओगे Spread, अच्छा ही फैलाओगे। spread the positivity, spread the Spread the happiness. positivity, right? So that is what exactly it is. Now I want to ask people, those who are listening to us, that what exactly they understand from that. इस स्टोरी में अगर मैं बोलूं कि आप आज के टाइम के हिसाब से, व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीजों की वजह से जब हम अपनी लाइफ को खत्म करने के कगार पे आ जाते हैं, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? सो आई हैव एन हैबिट ऑफ पुटिंग ऑल ओल्ड स्टोरीज एंड मोरल, जो उनकी कहानियां हैं, जो कहावतें हैं, उनको आज के हिसाब से आई प्रेफर टू फिट इट इन देम एज वेल। तो मुझे लगता है कि जो चीजें आपको दुखी करती हैं Hmm. या परेशान करती हैं, इट इज बेटर नॉट टू टच देम, let them be in peace. There is a word which we say that let go, right? So we need to understand that how we can do that, and it is a very simple thing to understand. अगर आप किसी इस तरह की फीलिंग्स को छेड़ते हो तो नुकसान अपना ही होता है. It is better to that, we should move forward, we should spread out and spread positivity like that as well, which is going to help us in the end of that. So that is it about this story. Anything else which you want to ask, Dr. Pisha? Hmm. I want to ask, uh, how do I know if I'm experiencing stress or anxiety? Okay, great. So how do we feel when we are not feeling better? There will be few symptoms, and definitely there will be few changes in your behavior, your mental health, your physical health as well. Physically, you will start feeling unrest. You will not be going to the places where you want to go. You would not be like to do the things which you prefer to do always. अपनी उन सब चीजों से हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, जिन चीजों के लिए हम चाहते थे कि हम करें लाइफ में. You start breaking inside yourself. That is what we do. I think it is better to, whenever you feel something like that, broken or एनीथिंग इट कैन बी इन लाइफ. आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा है या आप दुखी हो. आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत होता है, व्हेन पर्सन इज deep into depression because of the performance or because of financial issues, because of relationship issues. But there is one thing that we should not be getting too much deep into that. इतनी गहराई में जाने के बाद अगर हम ऊपर नहीं आ पाते तो that is where that depression and anxiety get start. That is what wherein we are got up by that stress thing, जहां पे हम लोग इतने बंध जाते हैं उन चीजों के अंदर, उन अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर में फंस जाते हैं. That is what how it is happens. So I believe that when we talk about stress, specifically about she, so I think it is more of kind of a very different kind of role. So I was talking to few people recently, especially working women, and when we discussed, it is quite difficult nowadays. When you are at home and you are also working, you have to handle everything as it is, including your job profile as well at home. That is working from home, which is the biggest challenge a woman has overcome
in nowadays, and it is smooth in last 5-6 months. Yes, in beginning it was like a roller coaster ride. It is quite difficult for everybody. But if we keep stressing out because of everything, whatever is going on in life, I think it will become very difficult to manage things. हाँ जी, बोलिए. Even I will keep discussing about these things. You can So ask me what questions. happens to your body when you experience, what exactly happens to the body when we experience stress? Okay, so there will be few changes which will happen in your body. You may start feeling uneasy, uh, kind of, breathlessness. It can come happen to you. You will start getting tired of your regular schedule. You will get, kind of pain in your body. It is all because of the internal chemical changes which happens in a person. I believe it is not more of a physical, it is more of a mental changes which happens. You start avoiding and getting out of things. आपको अच्छा नहीं लगता है. अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपका मन करेगा कि नहीं यार मैं निकलूं यहाँ से. And you will like to avoid those social contacts earlier which you were doing very well. अपने दोस्तों से मिलना आप कम कर देते हो. अपनी आप बातें शेयर करना बंद कर देते हो. Then you don't enjoy going into the functions or social gatherings, etc. That is how it goes, and it builds up, which brings kind of आपको वो अकेला कर देता है. That is what a person do. Maybe we start thinking that कि अगर मैं अकेला रह के थोड़ा सोचूंगा तो शायद मैं sort out कर लूं. ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग. No, That is what is the biggest mistake. ऐसा होता है क्या कि say like for example for my mom, okay, she's जी, so stressed. Probably I would use the word stress only because उनके ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है, ठीक है. right, right, एंड शी इज ऑलवेज मतलब आई वोंट से अनवेल, बट she doesn't look good. मतलब probably because she's thinking so much, or probably she's stressing out. But yes. she keeps having these calf pains, muscle pains, and then her BP fluctuates, ऊपर नीचे हो जाता है. एंड पर जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता है उसमें. देखिए ट्यूशा जी, सबसे बड़ी बात which we need to understand is stress, anxiety, depression बीमारियां नहीं है. बीमारियां नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जो Exactly. आपको बाकी चीजें दे देती है जो आपके शरीर को खराब करती है. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली. अगर आप एक डायबिटिक हैं और अगर आपका स्ट्रेसफुल डे रहा है ना, चेक इट फॉर श्योरली योर डायबिटिक काउंटिंग जो आपकी आती है ब्लड शुगर, हाँ, it will that will increase. be on the higher side. बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी. That It will is go around 200 something from 140, 160. But if you are calm, so that is what I'm trying to do. So what exactly I do to my clients also, जिनके sessions होते हैं मेरे साथ में, I take one-on-one sessions, on call, video, face to face and all. I give them some grounding techniques also. See, stress है क्या? क्या ये कोई कोरोना वायरस तो नहीं है कि मेरे को मैं आपको छूंगा तो आपको हो जाएगा? Is it like that? नहीं ना. everybody's स्ट्रेस stress क्या is है? different. स्ट्रेस तो Stress, ऐसा वायरस है जो हमारे अंदर हम खुद पैदा करते हैं और वो exactly. हमें ही खा जाता है. इट इज बॉर्न बाय अस. इट इज, हम उसको जन्म देते हैं. स्ट्रेस कहते हैं ना, मुझे स्ट्रेस हो गया. स्ट्रेस होता नहीं है, वो आपके अंदर ही रहता है. स्ट्रेस इज देयर ऑलवेज. मैं कहता हूं कि स्ट्रेस Yes. बुरा नहीं है. अगर आप रोज 30 ग्राम समथिंग कुछ प्रोटीन या कोई भी चीज ऐसी हेल्दी चीज खाते हैं तो आप यू विल बी वेरी हेल्दी. अगर आप रोज 100 ग्राम प्रोटीन खाना शुरू कर दोगे तो अगले 4 दिन में आपकी बुरी हालत हो जाएगी. एक्सेस बड़ी Excess प्यारी कहावत है. anything, yeah, आदमी excess हर कभी चीज की भी. बुरी होती है. Yes. सो यू नीड टू एंश्योर कि आप इन चीजों से बाहर कैसे निकले. ये सब इट इज ऑल इन माइंड. दैट इज व्हाट आई से ऑलवेज. इट इज ऑल इन माइंड. देयर इज अ स्टेज व्हिच विल कम व्हेन यू विल गो फॉर द मेडिसिन एंड मेडिकेशन. बट before that, if you are able to identify and if you are able to reach to a good coach, they can turn it back. रिवर्स हो सकता है बड़े आराम से.
ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बट यू कैन ओनली गेट आउट ऑफ इट once you are able to, the, once you promise yourself you want to come out of it. yes, exactly, that is very important, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, I speak to her, my Yes. sister speaks to her, नहीं, खुल के नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी वो नहीं इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप उनसे पूछते इस तरीके से हो कि वो कुछ बताएं. है. Okay, so it's very different. When I talk to my clients and in my sessions, I don't ask them, अच्छा आपको डिप्रेशन है, अच्छा आपको कोई नहीं एंजाइटी होती है. बोलेगा, कोई नहीं नहीं बोलेगा ना बोलेगा. वो भी. तो डोंट मेक देम फील. ओके. पहले आपको देखिए, स्ट्रेस इज लाइक ए पेट टू यू. हाँ. हाँ. अगर वो आपसे डर रहा है, आपका पेट, तो आप क्या करते हो? प्यार से बात करते हो. प्यार करेंगे. उसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है आपको. हम्म. Okay, so it's very, so I have a very bad habit of, I'm a metaphorian by birth, I will say. So metaphors मेरे निकलते रहते हैं टाइम टाइम पे. So that is what we need to see. You have to treat it like that. आप उसे अगर अपना बना के अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को ही तो समझ रहे हो. If you यस. want to spend time with you, then spend a good quality time with yourself, thinking that what I can do in future. जो हो गया वो हो गया भैया, वो जो रहता बिखरा बिखरा था वो बिखरा हो गया ना, खत्म हो गया, दैट इज क्लोज. बट व्हाट वी डू, दैट हम उस जो चीज लाइफ में खराब हुई है उसको देख देख के रोते रहते हैं. दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ इट. इंस्टेड ऑफ वी शुड मूव फॉरवर्ड इन अवर लाइफ, वी शुड लुक फॉरवर्ड एज वेल. दैट इज हाउ इट हैपेंस. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मैं अभी बात कर रहा था ना कि ये सब माइंड के अंदर होता है. देयर इज अ वन गुड स्टोरी, आई हैव अनदर वन. इट्स अबाउट एक लकड़हारा है और उसके पास दो बकरियां हैं और वो जंगल जाता है लकड़ी काटने के लिए. बाय चांस ही हैज ओनली वन रोप कि वो, और जंगल में शेर है, तो वो बकरियों को अंदर नहीं लेके जा सकता. ही हैज टू लीव देम आउट. तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास रस्सी तो एक ही है, तो एक बकरी को बांध सकता है, एक को नहीं बांध सकता. एक अगर नहीं बंधेगी तो वो गुम जाएगी या अंदर आ जाएगी जंगल में, या कोई और ले जाएगा, नुकसान तो हो ही रहा है. तो अभी एक संत जी आते हैं, पूछते हैं बेटा क्या हो गया. तो बोलता है बाबा ये अंदर जंगल में शेर है, मैं बकरियां दो अंदर लेके जा नहीं सकता और मेरे पास रस्सी एक ही है. तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक बकरी को बांधो जो रस्सी आपके पास है. तो लक्कड़हारे ने उस रस्सी से बकरी को बांध दिया. अब संत ने बोला कि दूसरी को भी बांधो. तो लक्कड़हारा बोला कि दूसरी को कैसे बांधू मैं, मेरे पास तो रस्सी नहीं है. उन्होंने कहा बांधने की एक्टिंग करो. टेल हर, शो हर दैट यू आर, ना, रस्सी लपेट रहे हो गले में, खूंटा गाड़ रहे हो, उसमें बांध रहे हो. दैट इज ऑल यू डूइंग. डू इट द वे यू डिड इट टू फर्स्ट वन. अच्छा ठीक है, ऐसे हो जाएगा. इट्स ऑल इन माइंड. लक्कड़हारे ने बकरी को वैसे किया एंड बकरी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अच्छा बंद गई हूं मैं. एंड शी वॉज नॉट मूविंग. लक्कड़हारे का काम हो गया, वो अंदर गया, उसने लकड़ी वकड़ी काटी, अपनी जो भी करना था, और संत जी भी चले गए घूमते फिरते आगे. शाम हुई, लक्कड़हारा वापस आया और उसने जो रस्सी वाली लकड़ी जो बकरी थी उसको खोलना शुरू किया. खोल दिया और वो चलने लगा. तो उसने देखा कि वो दूसरी बकरी तो हिली नहीं वहां से, बल्कि वो तो बंधी भी नहीं हुई है. तो वो परेशान, उसने कहा भी चलो चलो चलो. उसने बड़ा बुलाया बकरी को, बकरी वाज नॉट लिसनिंग. तभी संत जी आ गए शाम को अपना टर्न वापस लेते हुए. तो संत ने बोला कि भाई क्या हुआ. बोले जी, लकड़हारा बोला बाबा ये तो बकरी हिल ही नहीं रही है, बंधी भी नहीं है, फिर भी नहीं हिल रही है. बोले बेटा आपने बांधा था ना इसको, आपने इसको बांधा था, आप इसको खोलो, तभी इसको लगेगा कि मैं खुली हुई. इट्स इन द माइंड. तो लकड़हारे, हाँ, इट्स ऑल इन माइंड. तो लकड़हारे ने बकरी को जब ओपन किया तो बकरी एकदम फ्रेश और स्टार्टेड मूविंग. भागने लगे. सो ये सब हमारे दिमाग में है. दैट इज व्हाट ऑल वी डू. आई थिंक दैट I will give a task to everybody to do today. Those who feel that they have stress, anxiety, and depression, and write it back to me. लोग मेरे से connect कर सकते हैं. I want all of you to write
टॉप 10 प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। 10वीं ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, करते 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 नीचे आइएगा और वो लिखिएगा। और उसके अलावा आप ये भी लिखिएगा कि 10 अच्छी चीजें आपने अभी तक कौन सी करी है। पीयूषा जी, चलिए आप बताइए, आपने कितना टाइम पहले अपने आप को शीशे में देख के ये बोला होगा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ? अभी बोला आपने हम्म, रिसेंटली? कब बोला था? याद नहीं है। हाँ, तो बोला नहीं ना। वेरी ट्रू इन दैट, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम सब ऐसे करते हैं। सी, it's mainly about females. It happens with the male also. Being a female, we are too much into giving कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, एंड वी ऑल्सो नीड स्पेस एंड टाइम फॉर अवर सेल्फ। मेरी एक कोट है, आई डोंट नीड स्पेस, आई नीड टाइम फॉर माई, आई नीड टाइम टू अनफोल्ड माई सेल्फ। See, I realize that I need time, but people around me should realize, ना। I वो नहीं करेंगे realize that कभी भी वो रियलाइज। कभी नहीं करेंगे। वो लक्कड़हारे हैं, वो लक्कड़हारे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपको अपने आप को खुद ही आजाद करना पड़ेगा इन बंधनों से। आई एम नॉट सेइंग दैट ब्रेक द रूल, ब्रेक द रिलेशंस एंड गो आउट ऑफ इट, ब्रेक द काइंड ऑफ थिंकिंग लेवल विच वी हैव। पीपल थिंक अबाउट यू। Yes. आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। सबसे पहले तो भैया ये मानो अपने आप के लिए। यू ऑल्सो नीड स्पेस, यू ऑल्सो नीड सम टाइम टू गो आउट। अपना ईयरफोन लगाओ, अच्छे से गाने सुनो 15 मिनट के लिए। जिंदगी में रोज अगर 15 मिनट भी आप ये कर लो ना, तो मैं बता रहा हूँ हफ्ते में 4 बार अपने आप को बोलोगे कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। Very good. I mean, बिकॉज very यू विल, true. Very true. इट इज ट्रू। थैंक यू सो मच। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। आप पूरी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भूल चुके होगे अपनी लाइफ में, क्योंकि हम अपने को जब जगह देंगे अपने दिमाग में, अपने दिल में, तो कुछ चीजें बाहर निकलेंगी। I do that. वो जो, I do that. I like painting. So ओके, दैट्स गुड। definitely I take out time to paint 1 to 2 at least in a week. And उससे क्या होता है कि even if I'm sitting for 10 minutes or if I'm sitting for 1 hour, but that time is for myself. Because whenever I राइट, create something, I feel happy. अच्छा लगता है. And that is what I think everybody should do. कि find out what यस, you love and spend राइट, time on it. दैट इज व्हाट वी शुड डू। एनी टाइम, अर्ली मॉर्निंग, इन द नाइट, टेक अ वॉक। few years back, I will give you my example, मैं इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। It's been few years now. I was like in a normal routine. ऑफिस गए, काम किया, घर आ गए, बीवी बच्चे, सो गए, फिर सुबह उठे, ऑफिस गए, वापस आ गए। लाइफ वाज लाइक, मैं सोच रहा था कर क्या रहा हूँ भैया मैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट everybody everybody on this earth was born to do something special. Exactly, exactly. We are all born for a purpose, बट with प्रॉब्लम a ये है ना कि purpose. वो हम बकरी बन जाएंगे तो फिर वो तो कोई ना कोई खूंटे से बांध के चला जाएगा। Hmm. that is a harsh reality. We need to accept it. That is what we need to understand, that this is like something, अब इसके ऊपर आते हैं कि ये बन कैसे जाता है। हम Hmm. इस तरह का नेचर हमारा, एक्सेप्टेंस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, ये बन कैसे जाता है। इम्यून सिस्टम, आजकल इम्यूनिटी बहुत चल रही है, राइट। हर Yes. बंदा जिसको देखो वही 6 महीने से इम्यूनिटी, कोरोना से बचना है तो ये लीजिए, वो लीजिए, ये करिए, वो करिए, एंड इट इज गुड, it is helpful. But what I invented is that, what about your immune system of personality? आपने खा पी के अपनी सेहत तो ठीक कर ली, फिजिकली या Mental नहीं? immunity. Mental immunity. यस, मेंटल इम्यूनिटी कहाँ है भैया आपकी? Nobody thinks about it. How we become immune and how we become a personality like that, it all depends that आप कब कब कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मिलते हुए लाइफ में आगे बढ़े हो, आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस लिए हैं, और एंड में आके आपने अपने आप को क्या बनाना चाहा है।
ये किसी और के हाथ में नहीं, to decide that what you want to become. What all we become is our choice. Yes. And then we stressed out कि अरे यार मुझे तो 1 करोड़ बनाना था अगले 1 साल के अंदर, मुझे तो ये घर बनाना था, मुझे तो बच्चों की शादी करनी है, मुझे फाइनेंसेस ठीक करने हैं। सोचते बहुत हैं, बट वी डोंट प्लान। अगर Yes. मैं ये कहता हूं कि इफ यू कैन चैलेंज योर सेल्फ, टेक अ चैलेंज टुडे, और अगले 60 डेज के अंदर अगर आप पूरे तन मन धन से उस चीज को करोगे तो यू कैन मेक इट हैपन। 60 days and you can change your life forever. ये सब चीजें एक तरफ हो जाएंगी, जो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो भी है, इट इज ऑल लाइक माइंडसेट। Yes, everything लोग is in the बहुत mind. भारी मान के चलते हैं, बहुत भारी मान के चलते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल क्रिएटिंग उसको एकदम हवा बना के रखा हुआ है, ये भैया स्ट्रेस हो गया, अच्छा आपको डिप्रेशन हो रखा है। वो एक अभी न्यूज में भी वो चीजें इतनी चल रही है कि लोग और घबरा जाते हैं, अच्छा मुझे डिप्रेशन तो नहीं है। ओहो, इट इज ऑल इन द माइंड। जितना हम उसको Yes. अपने ऊपर हावी होने देते हैं चीजों को, सिचुएशंस को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लक्ष्मीबाई बन जाओ और जाके तलवार उठाओ और सबको काट डालो। इट इज नॉट लाइक दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन हैंडल इट इन अ प्रॉपर वे। किस तरह से हम चीजों को हैंडल करके कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आसपास के माहौल को, लोगों को अपने प्रति समझा सकते हैं कि भाई ये चीजें एक्सेप्टेड है, ये चीजें नहीं है। समवेयर यू हैव टू लर्न टू से नो एज वेल। हम यस यस बहुत करते हैं Women किसी के लिए। especially. हाँ, मैं वही आने वाला था, मैंने कहा मैं बोलूं कि ना बोलूं। तो इट्स जस्ट लाइक बच्चों ने बोला ये वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, यस 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 बेटा, नो देयर आर नीड्स फ्रॉम फैमिली, नहीं, स्पाउस, I tell my mom कि मम्मी हर चीज आपको हाँ करने की जरूरत नहीं है, but when it comes to me, my kids, if she asks me मम्मा ये खाने का मन कर रहा है, unless and until I give it to her, मन शांति नहीं होती है। Probably that is I because of understand it the is motherly love, yes it is motherly love, love. बट मदर मैं देखो, आप करिए मदरली लव, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं दूसरों को देने के लिए। बट मेरा सवाल आपसे ये है, आपने दिन के अंत में, एंड ऑफ द डे, आपने अपने लिए क्या किया है और अपने आप को क्या दिया है उस स्पेसिफिक डे में। रोज अपने लिए एक अच्छी चीज करना सीखो। ट्राई टू डू समथिंग स्पेशल और नॉर्मल, For कुछ भी चीज yourself. होती है, राइट। मैं आई यूज टू डू थिंग्स, इट इज नॉट दैट अगर आपको की बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है, तो उसी दिन कोई गिफ्ट लेके आए। आई प्रेफर दैट यू कैन ब्रिंग अ गिफ्ट एनी डे। मेरी डॉटर के लिए मैं करता रहता हूँ ये, इट इज नॉट कि उसके बर्थडे पे, क्रिसमस पे ही सिर्फ संता जी आएंगे बस, बाकी तो पूरे साल संता जी दिखेंगे नहीं। वी नीड टू प्लीज अवर सेल्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने लिए खुद भी कर सकते हैं। वी शुड नॉट बी वेटिंग। तो 6 साल की बच्ची है, चलो उसके लिए तो पापा करेंगे, बट फॉर वी दोज हु हैव सीन अ होल ऑफ लाइफ फॉर लास्ट 20, 30, 40, 50 years, हम लोगों ने अभी भी नहीं सीखा तो फिर हम कब सीखेंगे। बट वो हम सोचते हैं कि नहीं यार, वुमेन लाइफ इज लाइक दिस, चलने दो, हमें ही करना पड़ता है, हमें ही झेलना पड़ता है, ये है वो है। इतनी पुरानी रूढ़िवादी रीति रिवाज और ये सब चीजें चलती है। इट इज लाइक यू नो समझ नहीं आता कि लोग किस तरह से हम अपने आप को उससे स्ट्रेस और उससे बाहर रखें। सो वी नीड क्योंकि टू ये लर्न ये आउट। होती है ना कि इवन इफ यू वो माइंड को ऑफ करना मुश्किल हो जाती है। आई थिंक सो, ऐसा हो सकता है। कैन यू टर्न ऑफ योर माइंड? यस, वी कैन डू दैट इन एनएलपी। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल हो गए शायद। सो देयर वाज अ राहगिरी हुआ था न्यू गुड़गांव के अंदर। ठीक है, आई स्टे इन न्यू गुड़गांव। सो इन यहाँ पे राहगिरी हुई थी फर्स्ट टाइम। सो आई वाज द फर्स्ट पर्सन, एंड देयर इज अ टेक्निक व्हिच वी कॉल दैट हाउ टू इरेज बैड मेमोरीज, which can be only people only use it in a बंद कैबिन के अंदर, सिर्फ क्लाइंट और एक कोच होता है। आई डिड इट ऑन 6 people ओपनली इन फ्रंट ऑफ 200 300 के आसपास लोग होंगे। राहगिरी में आपको पता है कितने लोग आते हैं सुबह सुबह, कितना रौनक होता है। सो आई परफॉर्म्ड इट। यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सी दैट वीडियो एज वेल। सो इट इज लाइक we can do these things and they people were very happy after that, all 6 were very happy कि हाँ कुछ
उस पर्टिकुलर मोमेंट में आने के बाद हम उस चीज को एकदम भूल ही गए थे, व्हाट वाज द बैड मेमोरी और व्हाट वाज द नेगेटिव थिंग इनसाइड अस, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक विच वी डू, ग्राउंडिंग टेक्निक्स की मैं बात कर रहा था, विच इज वेरी हेल्पफुल। आपका स्ट्रेस आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपके एग्जैक्टली। गोल से, आपको समझदारी से उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। दैट इज व्हाट आई कैन टीच यू। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन वन अनदर थिंग। आपने समाधि के बारे में सुना होगा, वेरी आई लेटेस्ट हर्ड इट। स्टडी। सो I इट्स used to do meditation. तो मतलब it is a part of meditation only, right? समाधि जो आप बोल रहे हैं, it is a part of इट इज वेरी, meditation only. it is part of meditation, but it is Beyond this, that. I have given a touch of neuro linguistic programming in Okay, that. okay, So I have a bad okay. habit, मैंने बोला मुझे बहुत बुरी आदत है कि मैं पुराने रीति रिवाजों और पुरानी चीजों को उठा के आज के हिसाब से देता हूँ। अगर मैं आपको 100 साल पहले कोई दवाई दूंगा तो आपको असर करेगी? नहीं करेगी, because that कोरोना environment में and this क्या, environment. कोरोना के ऊपर जो दवाई चल रही है अभी तक मिली नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई पुरानी मेडिसिन जो 100 साल पहले बड़ी स्ट्रांग मेडिसिन मानी जाती थी वायरस के लिए, क्या वो चल रही है? वो तो आज की देन डेट में हाउ भी वी नहीं कैन, हाँ होती है। बिल्कुल। सो देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि पुराने रीति रिवाज, पुराने जो तरीके हैं, पुरानी जो टेक्निक्स हैं, पुराने जो थॉट प्रोसेस हैं, वो आज के टाइम पे चलेंगे? नहीं भैया, नहीं चलेंगे। वी नहीं लिव इन चलेगी। डिफरेंट, 2021 में हो आप, 2020 में, सॉरी मैं तो 21 में आ गया था, 20 तो निकलना जल्दी आ निकल गया, चुका है। 21 तो आ गया, 3 महीने बाकी है। So that is how it happens. But I am very hopeful for the people जो लोगों ने ये पिछले 6 महीने बिताए हैं घर के अंदर रह के। I think being a woman, it is very difficult to do all those things. हैंडल करना पति एज ए हस्बैंड क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, मैं हस्बैंड हूँ। मुझे जॉब करने जाता हूँ तो ऑफिस के पीछे तो सारा वाइफ कर देखते थे। माई वाइफ इज नॉट वर्किंग, बट दोज हुज वाइफ इज वर्किंग, उनको तो घर आके भी खाना बनाना पड़ता है। आई And no, hear it and lot you, from many people, right? and at the end of the day तो ये भी सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो। I know, I know, I know, I know. It is bad. It is really bad. And I feel pity for such people and males, those who think and talk like that. You know, बहुत because अजीब है, managing the home is much more than professional work. बहुत Much डिफिकल्ट है। more, very मुझसे पूछो, difficult. मैं मुझसे पूछिए, मैं रोज पोछा लगाता हूँ, तो पोछा लगाना कितना आसान थोड़ा ना होता है। That is what we do. And then to make the house इतना बदमाश बच्चे के साथ घर को घर I know, जैसे रखना, you know, it right. is much more than, you know, sitting in front of the computer and working for 8 hours to complete some project. It is difficult. So jokes apart, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एज ए फीमेल हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इट इज प्योरली डबल ऑफ इट। मैं एज ए मेल आई एक्सेप्ट इट ओपनली। इफ एनीबडी कैन कम एंड चैलेंज मी कि नहीं भैया मेल की ज्यादा होती हैं, मैं बता रहा हूँ मैं कोचिंग छोड़ दूंगा। बट एज ए फीमेल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज किड्स, मैनेज देयर स्कूलिंग, मैनेज देयर स्टडी, मैनेज होम, मैनेज इन लॉज, मैनेज आउटलॉज। इन लॉज बहुत खतरनाक मामला होता है, ठीक है? इन लॉज और आउटलॉज सब सब मिला के रिश्तेदारियां संभालना सारी, ठीक है? किसका बर्थडे आ रहा है, किसका जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देयर आर नॉट मेनी थिंग्स, राइट? वी डू। मतलब अगर आप लिस्ट बनाने बैठो, आपको लगे आपके ऑफिस में तो आपके कियारे पे ही काम करते हो ना। आपका गोल का एक बनती है साल में शीट, उसमें 10 गोल होते हैं, आपको वही करने होते हैं। बट किसी दिन अपनी वाइफ का कियारे देखना जरा क्या है, एंड पीपल विल बी सरप्राइज कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। सो let's come back to the topic, क्योंकि it is all about you know, when we talk about these things, stress in female especially, मुझे लगता है कि वो अपना ही पैदा किया हुआ प्रॉब्लम है। हर एक इंसान में यही है कि स्ट्रेस है तो वो मेरी अपनी करी हुई है, मैंने ऑल इज देयर इन द माइंड। हमारे दिमाग से ही शुरू होती हैं सब चीजें और वही खत्म होती हैं। देयर आर वेरी गुड टेक्निक्स व्हिच वी कैन यूज, देयर मेडिटेशंस, and what I prefer mostly with my clients is, you know, it's kind of prescription without pills. So मैं कोई pills नहीं देता हूँ, मैं उनको बड़े simple steps के अंदर, you know, I will write it down few things with them, I will be following up with them, or and I've seen very good results with my people. Those who are associated with me, they know that very well. They have seen very good results in their life. They get their life back.
अपनी जिंदगी पे आपका अपना हक है, आप उसको वापस लीजिए, बट उस तरीके से कि आप, मैं नहीं कहता कि आप अपने रिलेशंस को खराब करे हो या आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई मेजर चेंज कर डालो। नो, what we need to do is that we need to understand our own value. We need to just give some time to ourselves. Mm. कई बारी हमने वो बस जो कहते हैं ना कि वो कहावत है कि आलू और स्ट्रेस जो है सबसे सस्ते मिलते हैं, कभी भी ले लो और कहीं पे भी डाल लो, कहीं भी किसी भी चीज के लिए आप परेशान हो सकते हो, आपको बस आना चाहिए कि आप परेशान कैसे होते हो। दैट इज हाउ इट गोज एक्चुअली। एंड हाँ जी। कैसे जी। पता चलेगा कि हाँ कि आई एम एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस? हाउ डू आई नो दिस इज द राइट टाइम आई नीड टू गो टू अ कोच लाइक यू? इट्स अ वेरी गुड गुड क्वेश्चन टू आस्क। जब स्ट्रेस, जब मैंने कैसे बोला कि स्ट्रेस तो आपको रहता है लाइफ में हल्का फुल्का, है ना, शाम को क्या सब्जी में बनेगा, सुबह क्या बनेगा, कल ब्रेक, आज ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि कल के ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, हाँ जी क्या खाएंगे आप कल। दैट इज हाउ इट हैपेंस, राइट, कन्वर्सेशन यस, स्टार्ट ऐसे यस, होते यस। हैं। दैट दीज आर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स कि हाँ ये खरीदना है, वो लेना है, ये बनाना है, ऐसे करना है। दीज आर ऑल नॉर्मल स्ट्रेस टॉक्स एंड थिंग्स विच वी कीप इन अवर माइंड। देयर विल बी अ लेवल दैट विल कम जहां पर आप जो चीजें आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, जो आप सबसे ज्यादा शौक से करते थे, खाते थे, पीते थे, या कुछ एक्टिविटी करते थे आप, एनीथिंग जो आपको बहुत पसंद होता, तो आप वो अचानक आप उन चीजों से दूर होने लग जाते Mm. हो। आपको लगता है कि नहीं मैंने इन चीजों को बहुत टाइम दिया, आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दीज थिंग्स, सो यू विल स्टार्ट लीविंग दोज थिंग्स। आप अकेले में ज्यादा रहना पसंद करते हो। यू विल गेट इरिटेटेड बाय थिंग्स वेरी इजिली। छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा, एंड समटाइम यू विल ब्लो अप एज वेल। बात कुछ नहीं हुई है, बट आपका गुस्सा ऐसा होगा कि बस अभी तलवार हो तो आप काट ही दो किसी को। दैट इज हाउ इट हैपेंस बिकॉज स्ट्रेस इज डीपली रूटेड इन योर माइंड। धीरे 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 सोचते सोचते और प्रेशराइज करते करते अपने आप को हम अपने दिमाग में लेयर बनाते हैं। इट इज लाइक वोल्केनो, ज्वालामुखी देखा आपने क्या होता है, दैट इज व्हाट हैपेंस। सो सबसे अच्छा एक रूल ये रहता है इसके अंदर कि अगर आपके मन में, दिल में कोई बात है, तो आप उसको रखो मत अपने मन या दिल में, आप उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स से, स्पाउस से, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, मदर के साथ में, जिससे भी आपका अच्छा बनता है, जो भी लगता है कि हाँ ये मुझे समझ सकती है या समझ सकता है, आप उसको बताइए। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू स्टॉप दैट वोल्केनो बस। नहीं तो एक Mm. दिन क्या होगा, फूट जाएगा। It will be And even there is more a bad level at when that you, time. और इस, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इट इज गुड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीबडी एज अ गुड फ्रेंड और समथिंग। क्योंकि क्या होता है कि कई बार दोस्त, रिलेटिव्स, हमारे यहाँ पे हर कोई बहुत अच्छी राय देता है, बट राय देने से आदमी का डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब चीजें दूर नहीं होती ना। यू हैव टू किल द रूट कॉज। रूट कॉज नहीं बता सकते, दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस, दोज हु आर नॉट सर्टिफाइड, दे कांट किल द रूट कॉज। Better is Exactly. that get connected to some coach. That is the time when you need to get into some coach कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, आप बताइए। हो सकता है आपका सिर्फ पहले 60 मिनट्स के सेशन के अंदर ही सारी बात खत्म हो जाए, हो सकता है आपका 2-3 सेशन के अंदर बात खत्म हो जाए। एंड दीज आर नॉट टू मच कॉस्टली सर्विसेज। आई डोंट नो, आई रियली फील अनहैप्पी अबाउट दीज थिंग्स दैट पीपल। देखो, एज ए एनएलपी मेरी पहली ये ड्यूटी बनती है, मेरा फर्ज है कि मैं लोगों की मदद करूं, Hmm. राइट। पहले हम एक सोशल कॉज के लिए भी चीज करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम फाइनेंसेस को कैसे करेंगे। एंड इफ वी आर एबल टू मैनेज फाइनेंसेस, वी शुड डू लिटिल बिट ऑफ सोशल कॉज एज वेल। आई हैव सीन पीपल चार्जिंग टू मच हायर अमाउंट्स फ्रॉम अदर्स, बट आई बिलीव दैट इट इज इट्स नॉट टू मच ऑफ कॉस्टली। वी शुड गेट कनेक्ट टू सम कोच। बात तो करके देखो एक बार आप। हम अगर अपनी लाइफ के साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे ही बिताते जा रहे हैं, तो यू आर वेस्टिंग 2 years ऑफ योर एज or 6 months or 2 months. Better to get Mm. connect to some coach and get 60 minutes, 60 मिनट में आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्लियर हो जाएगा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। मे बी दे विल
it is an alarm of getting into a deep depression, जहाँ पे आपको medications की जरूरत पड़ जाएगी. Exactly. मत जाओ ऐसी सिचुएशन में ना. don't go People to. don't realize also actually. हम एक्सपेक्ट, मुझे लगता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ. उनको लगता है कि ये तो Exactly. सबके साथ हो रहा है. दैट इज हाँ. द प्रॉब्लम. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं, अगर मुझे किसी चीज का दुख है तो मैं देखूंगा, अरे यार क्या चल रहा है लाइफ में, नहीं यार ये प्रॉब्लम है, चलो अच्छा इसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे भी है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम चल ही रही है किसी ना किसी के. इट्स ओके, हम्म. नॉर्मल है. ये जो कैजुअल बिहेवियर है ना, चलता है, ये गड़बड़ हो जाती है. आई थिंक वी शुड गो एंड टॉक टू अ कोच, अंडरस्टैंड दैट ये प्रॉब्लम चल रहा है या ये जो भी दिक्कत है. इट इज बेटर टू कनेक्ट टू देम. आई थिंक दे आर द बेस्ट पीपल टू डू दैट. किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, कोच के पास जाइए, जहां आपको कंफर्ट लगता है. यू शुड गो एंड कनेक्ट विद देम. दे आर द राइट पीपल, दे हैव एक्सपर्टीज, दे आर सर्टिफाइड टू डू दैट. आपके चाचा, भतीजा, दोस्त सुनने के लिए ठीक है, समझाने के लिए कुछ समय तक ठीक है, बट एक जगह पे आके जब आपको कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो बेटर है कि आप यू शुड स्विच ओवर टू द कोच. फॉर अ टाइम बिंग इट इज फाइन. मुझे लगता है फिर वो ये चीजें बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज में आ जाती है जहां पे इट बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जहां पे आपको लॉजिक ही नहीं रहता कोई. दैट इज हाउ इट हैपेंस. हाँ जी, बोलिए ईशा जी. So can you, वो तो हमारी बात हो गई है. तो अगर अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो गया है कि यू नो आई एम ऑलरेडी इन स्ट्रेस एंड देन सम सिचुएशन ऐसा हो गया है कि मुझे एंजाइटी बढ़ रहा है, मैं सब किसी किसी को पैनिक अटैक हो जाता है. राइट राइट. उसको उसको हम कैसे हैंडल करेंगे दैट पर्टिकुलर टाइम? ओके. व्हेन देयर आर काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, व्हेन इट इज हैपनिंग विद यू, ट्राई टू गेट समवेयर इनटू अ पब्लिक एरिया. कहीं ओपन में जाइए. डोंट ट्राई टू दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. दिस विल गिव यू मोर डिप्रेशन. अकेलेपन में आप और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे. बाहर जाएंगे, आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर जाएगा. व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, आपको अपना ध्यान भटकाना है उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है. गेट आउट एंड स्टार्ट डूइंग एनीथिंग. गो टू मार्केट, गो टू ईट समथिंग, और अपने बच्चों के साथ कुछ खेल लीजिए 5 मिनट के लिए, इफ दे आर प्लेइंग. गो टू द पार्क, वॉच गुड पीपल, स्टार्ट राइटिंग समथिंग इफ यू वांट टू राइट. जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एन हैबिट ऑफ राइटिंग. नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से बात करिए, कॉल कर लीजिए. डोंट स्टे अलोन. इफ यू स्टे अलोन, तो ये वही हो गया कि भाई यू आर नॉट ट्राइंग टू रिमूव इट. इट इज लाइक अच्छा, दैट. देयर आर ग्राउंड. हाँ जी. नहीं सॉरी टू कट यू, मतलब एक ऐसी थॉट आया था. माय क्लोजेस्ट फ्रेंड हमेशा मोबाइल पे रहते हैं. हम्म. आई मीन ऑल योर द क्वालिटीज यू आर सेइंग. गुस्सा ज्यादा आता है, गेट्स इरिटेटेड वेरी फास्ट. किसी के साथ वन टू वन ऑन वन बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है उनको. राइट. एंड व्हाट आई गेट टू हियर इज हम ज्यादा तक टाइम मोबाइल में रहते हैं. एंड इट इज इंटरेस्टेड टू, मतलब मान लीजिए 4 लोग बैठते हैं तो कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. even if we even if we start even if the conversation is started, दो बातें ऐसे करते हैं and then again the person goes back into the mobile. ऐसा हो सकता है. This is also because of stress. This is also a sign of stress. और See, what other things which you notice apart from looking at the mobile? What else you noticed? Getting आई एम angry, आपने टेलिंग, बोला. Short बहुत, temper type. he the person is a short tempered person from the Okay. beginning, from the beginning. Mm-hmm. बट अभी और छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाता है. वी ट्राई टू टॉक बट it isn't effective. So, okay. So what you have Irritated, given me two. getting irritated. It is. It is a symptom of anxiety. Anxiety. जहाँ पे anxiety. It is symptom of anxiety. Wherein
I'm too much into thinking of things. I'm too much trying to do something every time कि आने वाले टाइम की चीजें थोड़ा ठीक हो जाए, या आने वाले टाइम में अगर मैं ये अभी नहीं किया तो आगे खराब हो सकता है, तो मैं अभी कर लूँ. आई नो, आई विल चेक माई मोबाइल एंड एवरीथिंग, ये वो सब चीजें करते रहेंगे. अगर मुझे कोई टोक दे बीच में तो मैं इरिटेट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे भी लगता है मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो मेरे को आने वाले टाइम में मेरे लिए सही है. सो प्रायोरिटी, वो सारी प्रायोरिटी उस चीज को दे देते हैं. एंड दे आर, एक स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है ना अपने फ्यूचर को लेके, तो वो एंजाइटी में टर्न होता है, विच इज लाइक आई बिलीव वी शुड अवॉइड इट. You can talk to them, but there are different ways of handling different people. So I will not be giving any comments here about particular person behavior, क्योंकि हर इंसान की समझने की, सोचने की और बोलने की जो क्या कहते हैं उसको, ताकत होती है या जो एबिलिटी होती है, it is totally different. So I never recommend anybody without discussing with them. That's why what I do, that I so I just want to say that on the Queen Bees Club, that anybody, those who are member of the Queen Bees Club, I will be offering them a 30 minutes session with me on call. They can connect with me, they can talk to me, and they can understand that if they realize that they are going through a stress, anxiety, and depression, so they can discuss that with me. So just they need to go to my Facebook page, RV Diary by Ravinder Singh Virdi. They can block a time slot or appointment, then I can connect with them. So they can drop a message on my WhatsApp on my number as well. So they can approach me in these 2-3 ways. This So is really wonderful that you are giving us an opportunity. So I'll spread the word to all the ladies who were not able to join us today also. I will spread the word in our WhatsApp group. And yeah, so it was wonderful, talking to you. It was really nice. I have learned so much. Being a doctor, I know how it affects, but kabhi the monotonous life ho jati hai ki you go ahead and you walk in the road knowing that ki usme gadde hai, but you still keep walking because your destination is on that road only. मैं आपको एक बात बोलूंगा इसके ऊपर कि these certificates can give you a good job, name tags. But if you have been through a very good life experience, तो ये certificates की value और बढ़ जाती है. Exactly. What caused me go for NLP or neuro linguistic programming, or I have done those few studies on psychology and CBT as well. वो सब इसीलिए था क्योंकि मुझे it was inside me somewhere, that keep triggering me कि हाँ नहीं ये भी करना है, ये भी करना है. Emotional intelligence के ऊपर भी there was a in last 2 years I have done 25 plus certifications on all these human behavior. कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग के अंदर. Even I am a corporate employee as well. I am working in a company as well. But these are the things which we do differently. Like I think it is my passion to help people, and I feel very happy when I do that. Great. We should all do. Yeah. We should all do something like that. Like you said, community के लिए करना जरूरी है. जी बिल्कुल. True. I agree with that. Great. So I think can we have 5 minutes so I can give my poems today? It's a daughter day. Sure. Yes. I believe that it's like a national anthem for daughters as well, because it's been very popular on LinkedIn and all other places. The origin of this poem was my daughter, especially. So I'm going to sing it for her. Please. It's daughter day, and I never will find no other words better than this to explain कि मैं अपनी बेटी को कैसा चाहता हूँ, कैसा देखना चाहता हूँ, और उसके लिए क्या क्या मेरे मन में तमन्ना है. It's poem written by me. I am a poet also. Oh, so I lovely. do that on and off. I am a writer, so I have two books on Amazon Kindle as well by the name of 25th Hour and Ignite Me. So people can go and read them. Kindle version है कि मुझे खुद वो बुक खरीद के, जो मोटी सी बुक्स होती है हाथ में, मुझे भारी लगता है. I don't know. So I created a Kindle version कि मुझे लगा कि मेरे जैसे लोगों को easy लगेगा.
It's all about life. So when somebody feel anxiety, stress or depression, they can just open the page of that book. कोई भी पेज खोलेंगे, किसी भी पेज को पढ़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ उनकी हेल्पफुल चीज मिल जाएगी. And that is That's the feedback which I wonderful. got from my clients as well, कि when they feel stressed, they open the book. और जब वो कुछ पढ़ते हैं तो उनको मुझे खुद बताते हैं कि अच्छा आपने उस बुक में पेज नंबर 13 पे ना अरविंदा जी ऐसे लिखा था कि 2 बार नहीं 3 बार सोचो उसको चीज करने से पहले. मैंने कहा अच्छा मुझे तो दिस इज हाउ इट फील्स गुड when somebody comes back to you and tell you that this is the Exactly. correct. Exactly. Okay, so now we will close it off with this Poem. poem और शुरू करते हैं. Okay, give me a second. Just set the camera. Okay, I hope it is clear. पोएम का शीर्षक है मेरी बेटी हो तुम. मेरी बेटी हो तुम, जाओ टकरा जाओ पहाड़ों से. मेरी बेटी हो तुम, हिला दो जंगल दहाड़ों से. कांप जाए धरती, थर्रा जाए समंदर. मेरी बेटी हो तुम, लोहा हो जाओ अंदर से. वाह. दोबारा सिखाना शेर को शिकार कैसे होता है. सिखाना हाथी को मस्त चाल चलना. खुशी में नाचे कैसे मोर को बताना. चीते जैसी गति से अपना लक्ष्य हासिल करना. मेरी बेटी हो तुम, जाओ आसमां से ऊंची उठो. मेरी बेटी हो तुम, जाओ जमीन से गहरी बनो. मेरी बेटी हो तुम, सूरज को तपा देना आज. मेरी बेटी हो तुम, चंद्र को चमका देना आज. उठा के पटक देना हर मुसीबत को.